big congratulations for the German student visa, that too in an English taught program, and that too in a top ranking German public university. Big congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. So, Thank you so much. so Mr. Khan, let my viewers know that India में आपका academic profile क्या है? What is like your brief introduction, first of all? Yes. My name is Mohammad Ajmal Khan, and I am from Punjab. I have completed my BTech in Civil Engineering and my Masters in Structural Engineering from Government University of Punjab, Patiala. And after that, I researched for doctoral positions, but to get admission in a PhD program, Masters is compulsory for certain countries, especially for Germany. Hmm. So I thought to have a master's, and then it will act as a bridge for me for my doctoral studies. So now I am going in Germany in Bauhaus University Weimar, which is one of the best public universities in civil engineering fields specifically. So I'm going in digital engineering program, and after that I am planning for a doctoral degree. And what exactly motivated you to study in Germany? Basically, the German study education system because it doesn't have any tuition fees. That that was the major factor which motivated me to pursue my studies. And after that, the benefit they are giving to the students, for example, the traveling, uh, like the trains and the bus, the public transport, doesn't cost anything to the students. So these were the two factors, major factors. And apart from that, the high-end and the top-notch research that is being done in Germany. Uh, that was also one of the main factors which motivated me. And how did you first came across our consulting services? What was the first impression from our end? When I finished my bachelor's in 2021, just after the COVID, I came across into German Okay. through social media, and after that, with time, the trust was built. I was closely observing everything on social media and all over Indo-Germans profiles. So within this period of 3 years, I closely observed, and I thought that this would be the best fit for me. What did you predicted like पहले आपका जब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ या फिर इंडो जर्मन एजुकेशन से आपकी काउंसलिंग हुई, यू सेड दैट आप 2021 से मुझे फॉलो कर रहे हो. सो व्हाट एग्जैक्टली मेड यू, एंड आपको प्रोसेस शुरू होने से पहले व्हाट डिड यू थॉट दैट ये चैलेंजेस हो सकते हैं for getting an admission in a German public university, getting the German student visa, because आप long time से R&D कर रहे थे since 2021. आप मुझे भी 2021 से फॉलो कर रहे हो, तो आप जर्मनी के लिए तब से ही R&D कर रहे होंगे, एंड यू प्लान फॉर 2025 इनटेक. तो ये जो 3-4 साल है उस समय व्हाट डिड यू प्रिडिक्टेड दैट ये चैलेंजेस आ सकते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिट लेने के लिए, ये this might be the challenges for the German student visas. What you predicted, what you thought in the beginning? इन द बिगनिंग मैंने सर यही सोचा था कि एक अच्छी प्रोफाइल के लिए मुझे टाइम चाहिए, सबसे पहली चीज जो है। और टाइम के साथ साथ जो सेकंड मेजर चीज थी वो थी एक्सपर्टीज। नो डाउट कोई भी बच्चा होगा वो अपने लेवल पे चीजों को समेट लेगा, कर लेगा, लेकिन उन चीजों को बेहतरीन तरीके से करना ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ये लगा था कि जैसे एसओपी होता है, जो हमारी प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड है, सारा कुछ है, उसमें अपना बैकग्राउंड बताना और वो सब चीजें टू द पॉइंट बताना, वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। क्योंकि हम बच्चों को स्टोरी लिखना तो आता है, लेकिन तरीके से कैसे लिखनी है वो लोग वही बता सकते हैं जिनकी एक्सपर्टीज हो। तो मेरा मानना ये था कि मुझे इसमें हेल्प की जरूर पड़ेगी। और मैंने काफी रिसर्च की। एंड एज आई एम फ्रॉम पंजाब, देर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स बिकॉज इट्स द हब। सो मैंने कोशिश की कि मैं किसी अच्छे इंसान को ढूंढूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पंजाब में ऐसा नहीं है। और
मैंने फिर जो रिसर्च अपनी बढ़ा ली, मुझे टाइम लगा। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर 3 इयर्स एज ऑलरेडी सेड, फिर मुझे ये था कि हाँ, हम इन पे ट्रस्ट करके कर सकते हैं। तो मैंने फिर शुरू कर दी। आई स्टिल रिमेम्बर योर फर्स्ट जूम काउंसलिंग सेशन जहाँ पे वी एक्सप्लेन यू द स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, एक पूरा ऑर्गेनाइज वे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। सो हाउ इम्पैक्टफुल वाज दैट काउंसलिंग सेशन टू मेक एवरीथिंग ऑर्गेनाइज एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बजट इन अ टाइमली मैनर, दैट ये टाइम पे इतने फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। जी, सबसे बेहतरीन चीज़ वही थी, क्योंकि पहला स्टेप होता है और पहले स्टेप में ये रहता है कि आपके काफ़ी डाउट्स रहते हैं मन में। तो वो जो डाउट्स थे मेरे, वो फर्स्ट सेशन में क्लियर हो गए थे। रीजन बीइंग कि मुझे बता दिया गया था कि ये टाइमलाइन है, ऐसे करके हमने पहले डॉक्यूमेंट्स करने के बाद हम प्रोफाइल करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो भी वीजा का वर्क रहता है। तो मुझे पहले दिन में ये सब चीजें क्लियर हो गई थी कि थोड़ा सा सब्र लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक रोड मैप दे दिया था और वो रोड मैप से काफी चीजें क्लियर हो गई थी। तो मुझे लगता है वो जो पहली पहली मीटिंग होती है और फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, वो ही चीजों को आगे सुधार देता है। उसी से चीजें आसान हो जाती हैं। तो उसके बाद तो बस गो विद द फ्लो चलता रहा। और सबसे बेहतरीन बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि स्टाफ ने काफी हेल्प की है, और वो भी प्रोफेशनली। ये नहीं कि कोई चीज हमने बता दी है और उस पर काम नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूरा टाइम पे काम होता था। और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसी मैं चाहता था। ये सबसे अच्छी बात लगी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अ, यहाँ पे एक्सपर्टीज मायने रखती है और क्वालिटी मायने रखती है। आप अगर तीन तीन लाइनों की भी चीज लिख रहे हैं, तो उसमें आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन लगी मुझे। टू द पॉइंट, सब कुछ अच्छा था। मतलब एग्जैक्ट रहा सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरी मेरी उम्मीद से कम हो, मुझे ये लगता है। And Mohammed sir, you are located in Punjab, we are located in Surat, and you mentioned that आप पिछले 3 years से मुझे फॉलो कर रहे हो. So what impact we have created by making all the testimonials, showing all the testimonials, और आपको वो decision making के लिए कितना वो impactful था, like to choose the consultancy of Indo-German education, वो कितना impact play किया था उसने. बहुत ज्यादा सर। आप ये लगा लें कि पंजाब में मैंने सर्च कर लिया, पंजाब में मैंने तकरीबन देख लिया, दिल्ली साइड भी मैंने देख लिया। मुझे ये लगता है कि जब इस मार्केट में कोई नहीं था तो तब आप थे। मेरा मानना ये है, क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग थे जो ये दावे से कह सकते थे, जो ओपनली बोलते थे कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन करा दें। वो वो बातें अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में हैं। तो आप लोगों ने उस टाइम शुरू किया जब इस चीज को किसी ने एनकरेज भी नहीं किया था। तो धीरे धीरे विद टाइम मुझे ये लगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। प्रोफाइल्स चेक की मैंने, टेस्टिमोनियल्स देखे, नो डाउट रिव्यूज इंसान पढ़ता ही है। वो सब कुछ देखने के बाद फिर मुझे एट द एंड फिर मैंने सोच ही लिया, मैंने डिसीजन बना लिया कि हाँ, अब बेहतर है, अब सही वक्त है और अब काम कर लेना चाहिए। And when the topic is to get an admission in a German public university, the biggest concern that a student has, the applicant has, is the paperwork, that पूरा paperwork कैसे handle होगा. Because admission in public university is not कि आप एक Exactly. वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दो and within 2 दिन आपको रिप्लाई आ जाएगा that here is your offer letter. It is a lengthy journey. पहले R&D करो, शॉर्टलिस्ट करो, देन डॉक्स प्रिपेयर, देन अप्लाई, देन वेट, देन गेटिंग द रिजल्ट्स. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इंडो जर्मन एजुकेशन एग्जैक्टली। हेल्प यू इन दिस प्रोसेस, और आपके लिए वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यस। वो आपको कितना स्मूथ डिलीवर करके दिया आपने. जी। सबसे जो पहली चीज रही थी वो यही रही थी कि सारा रोड मैप क्लियर हो गया था मुझे। और उसके बाद ये था कि हमें वो कोर्स लेना है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये रहता है कि आपका बैकग्राउंड मैच होना चाहिए। तो बैकग्राउंड मैच होना चाहिए जो आप फ्यूचर का सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो उसमें टीम ने मुझे बड़ी हेल्प की। उसमें मुझे स्पेशली मुझे कोर्सेज दिखाए गए
जो मेरे बैकग्राउंड से मैच करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने भी उस पर रिसर्च की, एंड हम एक कंसेंसस पे आए कि हाँ, ये कोर्स हमारे लिए बेस्ट है और हमें इस पे अप्लाई कर देना चाहिए। तो टीम ने काफ़ी हेल्प की है मुझे उस चीज़ में। और मुझे ये लगता है कि मैं अगर ना भी बोलता कि मुझे ये कोर्स, मुझे कोई भी कोर्स दे दो, तो मुझे ये लगता है कि टीम ने बेस्ट कोर्स ही चूज करने थे ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ी बात रही है मेरे लिए। And what is the expectations versus reality of studying in Germany process? Like जब आपने जर्मनी का प्रोसेस शुरू किया, like to apply for the APS, search for the universities via Indo-German, apply for the APS via Indo-German, getting the admission, getting the visa, ये जो प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? what what were the thoughts in your mind? एंड फाइनली शुरू करने के बाद हाउ वाज द रियलिटी? लाइक क्या डिफरेंसेस था दोनों में? सर इसमें फर्क तो बहुत है, क्योंकि डाउट्स बहुत आते हैं बच्चों को। जी। नो, इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं। कोई भी बच्चा रहे, बेशक बेशक कोई प्राइवेट में जा रहा हो, कोई पब्लिक में जा रहा हो, डाउट बहुत रहते हैं। तो मुझे तो देखें, मुझे तो सिंपली ये था कि अब रोड मैप क्लियर है, चीजें पता लग गई हैं। पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपने कोर्स करना, देखना। कोर्स देखने के बाद उन पे अप्लाई होगा। उनमें अप्लाई होने के बाद फिर सब्र करना, रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स के बाद आपका जो फर्दर रहता है, हाँ। वो आपने वीजा एंड ऑल का स्टेप करना है। तो जो कागजात का काम था, जो डॉक्यूमेंट्स का काम था, सबसे मेजर चीज ही वही रहती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान नहीं बोलता, कागज बोलते हैं। तो वो सबसे परफेक्ट चीज थी जिसकी वजह से आप ये लगा लें कि विद इन आफ्टर द अपॉइंटमेंट, विद इन 3 डेज मेरे पास पासपोर्ट आ गया, वीजा स्टैंप होके आ गया। तो कागज इतने अच्छे थे, इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे कि विद इन 3 डेज आ गया। दैट्स समथिंग दैट स्पीक्स इन इटसेल्फ। एंड ओवर हियर लाइक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? लाइक वो टाइम क्या था जब आपने ऐसा डिसाइड किया था कि दिस इज इट, यस आई वांट टू मूव टू जर्मनी? तो व्हाट वाज दैट पॉइंट इन द लाइफ? आपने लाइक फाइनल ऐसा कब डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब जर्मनी ही जाना है? हाउ इट वेंट? यस जी। बैचलर्स के बाद जैसे मैं आपको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, तो उस टाइम कोविड का भी टाइम था, एंड हाँ। उस टाइम ये भी था कि अभी कुछ कंट्रीज में ट्रैवल बैन भी लगा था और बहुत सारी चीजें थी। तो आई परस्यूड माई एमटेक इन इंडिया। एंड ड्यूरिंग माई एमटेक मैंने रिसर्च की, एंड मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया एंड ऑल, सारा कुछ। उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मेरा टॉपिक है, जो मेरी फील्ड है, उसमें जो बेहतरीन रिसर्च हो रही है वो जर्मनी में हो रही है। तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने आगे सोचा हुआ था कि मैंने आगे जिस टॉपिक में रिसर्च करनी है, उसकी जो एडवांस रिसर्च है वो जर्मनी में हो रही है। तो व्हाई शुडंट आई मूव देयर एंड परस्यू माय गोल्स। तो वो टर्निंग पॉइंट था आफ्टर माय एमटेक इन 2024। एंड उसके बाद फिर मैंने आपसे प्रोसेस करा, एंड बाकी सारी चीजें स्मूथ हो गई। And how did your family and friends reacted when you told them that okay, you are planning to move to Germany? उनका बहुत अच्छा था रिव्यू, क्योंकि देखें, कोई भी कंट्री में इंसान जाए, माँ बाप और दोस्त वगैरह सारे खुश ही रहते हैं। लेकिन जर्मनी की अपने में मिसाल है एक, अपने में बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। क्योंकि हर लिहाज से अगर आप देखें, हर हर तरीके से अगर आप देखें, तो जर्मनी बेस्ट कर रहा है अपने एरियाज में। बेशक इंजीनियरिंग पढ़ाई के रिलेटेड हो, या बेशक किसी और चीज में हो, जैसे लाइक ट्रांसपोर्ट फ्री है वहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंसेस अच्छे हैं वहाँ पे, और टॉप नॉच रिसर्च हो रही है। तो हर हर टाइप में, हर एक सिनारियो में जर्मनी इज बेस्ट। तो उनका जो रिएक्शन रहा है वो, ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगा, बहुत अच्छा रहा है कि आप एक अच्छी कंट्री में जा रहे हो एज अ स्टूडेंट, और आपका फ्यूचर ब्राइट है। Yes, because choosing a right study abroad destination is itself it plays a very vital role because आप आपकी upcoming life वहाँ पे ही stable होने का सोच रहे होते हैं। And मोहम्मद सर, यू आर मूविंग टू अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, फ्री यूनिवर्सिटी है, तो भी आपका टोटल फाइनेंस कितना हुआ फॉर द एंटायर प्रोसेस? व्हाट डू यू फील? जी,
टोटल फाइनेंस में जो सबसे बड़ी अमाउंट है, जो मेजर चंक ऑफ मनी है, वो ब्लॉक अकाउंट रहता है। हम्म, और ब्लॉक अकाउंट जो रहता है वो बच्चे का खुद का पैसा है, हम्म, जो सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने एप्लीकेबल किया हुआ है। तो आप ये लगा लें, वो तकरीबन 11 lakhs रहा, और उसके अलावा जो लमसम खर्चा है, जो शॉपिंग्स हैं एंड वीज़ा फीस है एंड फ्लाइट टिकट्स है, वो सब कुछ मिला के इट वाज अराउंड 12.5, ऑलमोस्ट 12.5, 12.7। ओके। तो आई थिंक इट्स 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 जेन्युइन, क्योंकि जो ब्लॉक अकाउंट का मनी है, बच्चे और माँ बाप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेजर चंक ऑफ मनी हमारी जेब से निकल गया, हालांकि वो स्टूडेंट का ही होता It comes back to you. And what was the reaction when you got your offer from the German Public University? I gave you the surprise. So है। उस यस। समय क्या रिएक्शन था? यस। मैंने जो हमने जो शॉर्टलिस्ट की थी यूनिवर्सिटीज, उसमें जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, दैट वाज बाउहाउस यूनिवर्सिटी वाइबर। जी, जी, अगर जर्मनी में आप सर्च करते हैं एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, गूगल पे डालते हैं, कहीं पे भी सर्च करते हैं, तो बाउहाउस टॉप पे रहता है, जी, टॉप पे रहती है। जी। और उसी में मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही पूरी हो गई। तो उसके अलावा फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मुझे ये था कि हाँ, एक चीज जो मैंने मैंने दिल से चाही थी, और जिसके लिए मैंने एफर्ट्स किए हैं, टीम ने एफर्ट्स किए हैं, प्रे की हैं, वो पूरी हो गई है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अभी इन चीज़ों इस प्रोसेस में होंगे, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सर्च करें, और आगे अपना जो प्रोसेस है वो आप लोगों से कराएं। Perfect. And Mohammed sir, like before starting the process, studying in Germany process, as an applicant, क्या fears होते हैं मन में? Like what were your जी। before even starting the process in the beginning? जी। सबसे बड़ा जो फियर रहता है वो ये रहता है कि हाँ, आपका वक्त ना जाया हो जाए। जैसे कि कोई भी बच्चा है, मुझे ये लगता है कि अगर उसको नॉलेज है, सब कुछ है, उसको सब कुछ पता है A to Z, उसको ये रहता है कि मेरे जो कागजात हैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सही तरह से अलाइंड है। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्टिंग है, वो ध्यान से करनी होती है, और कोर्सेज ध्यान से चूज करने होते हैं। तो ये सारे जो फियर्स थे, डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज कौन सी बेस्ट रहेंगी, कोर्सेज कौन से सही रहेंगे, ये कुछ ऐसे फियर्स थे, डाउट्स थे, जो धीरे धीरे विद टाइम सारे खुद ब खुद सॉल्व होते रहे हैं। थोड़ा सा बस सब्र लगा है, और थोड़ा सा आप कह लें कि समझने की चीजें हैं, बस और कुछ नहीं। and when you are having such fears, how important it gets to choose a right consultant for the process for the studying in Germany process के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है एप्लीकेंट के लिए कि वो राइट मेंटर चूज करे, राइट कंसल्टेंट चूज करे हु हैज द एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली exactly। सबसे मेजर बात यही रहती है कि आपको आपको वो इंसान देखना है जिसने ये सब चीजें पहले से करी रखी हैं। वो कहावत भी है कि जिसने जो चीज की हुई है, जो घर से बाहर निकला हुआ है, आप उसी से सफर, आगे सफर का जो मशवरा लेना है, गाइडेंस लेनी है, वो आप उसी से लें। सो एज आई वाज क्लोजली ऑब्जर्विंग इंडो जर्मन फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years, मैंने यही देखा कि आप भी बाहर से पढ़ के आए हैं, आपने भी जर्मन की ग्राउंड रियलिटी देखी है, आपको नॉलेज है उन चीज़ों की। तो मुझे ये था कि हाँ, जिस बंदे ने जर्मन की जमीन पे, जिसने है ना, जो गया हुआ है, जिसने वहाँ पे एनवायरनमेंट देखा है, एटमोसफेयर में रह के आया है, उसको लैंग्वेज आती है, तो वो हमें बेहतरीन गाइड कर सकता है। तो मुझे वो चीज़ें मोटिवेट की उन्होंने मुझे, और एनकरेजमेंट मिली मुझे कि हाँ, इंसान सही है और ग्राउंड रियलिटी जानता है, तो ये बेस्ट फिट है हमारे लिए। And you are from Punjab. You have never met me in Surat, Gujarat. हम्म। So, did you ever thought के पूरा studying in Germany का जो lengthy process है वो ऑनलाइन भी हो सकता है instead of offline in पंजाब, क्योंकि पंजाब में जी। टायर करते तो आप उधर जाके मिल सकते थे. You have never visited us. You have never met me in personal. Everything on calls. यस। What do you feel about यस। it?
सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अ, आपको विश्वास करना पड़ता है, लेकिन आप विश्वास उन्हीं पे कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ भी अच्छा रहा हो और बच्चों का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा हो। और इस टाइम में मुझे ये लगता है कि विश्वास की बुनियाद पे बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चे के माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एक सही पर्सन, सही टीम को चूज करे। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी मुझे कि मैंने आपसे प्रोसेस करवाना है डॉक्यूमेंट्स का और सारा आगे का पढ़ाई का। मुझे इसमें कोई फिक्र नहीं थी कि आप लोग दूर हैं, ठीक है, अदर स्टेट में है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो एक बैरियर बन रहा है या गैप बन रहा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत स्मूथ थी। सब कुछ सब कुछ ग्रुप में हो जाता था, व्हाट्सएप पे डाल दिया एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स उसका रिस्पॉन्स आ जाता था और बेहतरीन रिस्पॉन्स आता था और वो काम हुआ होता था। अब ऐसा रहा मेरे साथ। व्हाट्सएप का बारे में बोला तो टीम लीडर का आपको रोल प्ले कैसा लगा, जो मॉर्निंग में टास्क, बिकॉज वी हियर एट ऑफिस वी हैव अ सेपरेट टीम लीडर, स्टाफ मेंबर ही वो पूरे अलग है, जो अगर आपने कुछ भी जी टेक्स्ट ड्रॉप किया है तो उसको नोट डाउन करके दे शेड्यूल द टास्क एंड वो आपको भी नोटिफाई करते हैं, और आपको रात को या अर्ली मॉर्निंग में वापस से मैसेज आता होगा that जी ये वाला काम आपका कंप्लीट हुआ है, अभी हम लोग नेक्स्ट काम में जा रहे हैं। सो टीम जी। लीडर का आपको प्रेजेंस कैसा लगा फॉर द कम्युनिकेशन पार्ट? बहुत जी बहुत सही रहा, बहुत सही रहा। आप ये लगा लें कि अ, जैसे कोई काम है, कोई टास्क है, तो टास्क के बारे में बता दिया, मैंने बता दिया अपने लेवल पे या टीम ने बता दिया कि आपका ये टास्क है। तो शाम को क्या होता था, शाम को 6:30 या 6:45 के करीब एक बारी मैसेज आ जाता था कि आपका ये जो टास्क है ये फुलफिल हो चुका है और आपका ये जो टास्क है ये कल के लिए हमने रख दिया है और ये विद इन अर्ली मॉर्निंग पहले पहली शिफ्ट में बिफोर 12 PM ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। तो वो चीजें सारी सारी जैसे जैसे मतलब ग्रुप में आता था वैसे वैसे वो चीजें हो रही थी। तो सब कुछ फ्लो में चल रहा है और वो सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर फिक्र होती भी है तो आप फिर मैसेज कर दें इनको, तो वो सारी चीजें हल हो जाती हैं। And 18th of February 2025 the rules completely changed. आप जो हम चेंज। अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, suddenly we submitted the visa file online and I still remember आपका जैसे 18th of February को रूल चेंज हुआ, 18th of February 2025 से कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ एंड तुरंत ही हमने आपकी वीजा फाइल मैंने तुरंत ही सबमिट करवाई थी ऑनलाइन। सो जी व्हाट डू यू थिंक दैट जल्दी सबमिट करी, टाइम पे सबमिट करी, उससे उसकी वजह से आपका इंटेक भी मिस नहीं हुआ, यू आर गोइंग एट द राइट टाइम? क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं दैट अभी हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मेनी पीपल आर सेइंग दैट जी इस पे अभी भी वेटिंग दिख रहा है, फाइल सबमिटेड है अभी तक जी रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, वो कितना इम्पैक्टफुल था और कितना क्विकली वो काम हमने कंप्लीट करके दिया। एंड नया प्रोसेस था तो भी एज अ क्लाइंट आप कितना स्ट्रेस फ्री थे, आपको पेपर वर्क या कोई भी चीज का टेंशन लेना पड़ा या नहीं लेना नहीं, मुझे कुछ भी किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ी। क्योंकि टीम ने मुझे गाइड कर दिया था फोन कॉल पे और मैसेजेस में कि प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो गया है। और साथ में ये भी गाइडेंस थी कि अब जो प्रोसेस है वो फास्ट भी होगा। तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी थी, सो आई वॉज डोंट वरी। मुझे कोई चिंता नहीं थी इस चीज़ की। बेशक वो पुराना वाला इन्होंने डिलीट कर दिए, वेट लिस्ट जो थी वो डिलीट कर दी, लेकिन सब कुछ टाइम पे हो गया। आप ये लगा लें कि 18 फरवरी है तो विद इन 2-3 डेज में हमने वीज़ा फाइल कर दी। और आप ये लगा लें कि मेरी बारी भी आ गई, अपॉइंटमेंट भी हो गई और अपॉइंटमेंट के 3 दिन के बाद वीज़ा आ गया। तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन थी। टाइमली अपॉइंटमेंट भी होगी और सारा कुछ मतलब विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, वो जो कहावत है वो पूरी होगी। जी पड़ा? वीजा फाइल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक वी completely submitted the visa file on your behalf, then you went for the biometrics. तो एज ए एप्लीकेंट आपको थोड़ा भी स्ट्रेस लगा? क्योंकि मुझे, बिकॉज हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं अगर उनका किसी और एजेंसी से काम चल रहा हो एंड दे टेल अस के उनको ही सारा प्रोसेस खुद से करना पड़ रहा है।
सो आफ्टर हायरिंग इंडो जर्मन एजुकेशन, इफ यू कंपेयर योर सेल्फ, या फिर आप भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, या यू अगर आपने खुद से भी R&D करी हो, तो इफ यू नो अ पर्सन जो खुद से सारा प्रोसेस कर रहा है, एंड आप इंडो जर्मन एजुकेशन से प्रोसेस करवा रहे हो, उसमें आपको डिफरेंस क्या फील हुआ? काफी डिफरेंस था इसमें, काफी डिफरेंस था। और मैंने R&D किया और मैंने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली exactly अपनी कैटेगरी भी नहीं पता था। ये बच्चों को कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी भी नहीं पता। और उसके बाद उनको जब कोई करेक्शंस आ रही है, जो एज पर द न्यू CSP पोर्टल की बात कर रहे हैं हम, करेक्शंस भी आ रही हैं, तो उनको वो करेक्शंस समझ नहीं आ रही हैं। और वो सही से जो चीज करेक्ट करनी है उसको कर भी नहीं पा रहे हैं, वो बार 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 करेक्शंस उनको भेजी जा रही हैं। सब एंड कुछ आसान था। व्हाट इज द एक्साइटेड थिंग जो अभी आपके मन में चल रही है रिगार्डिंग जर्मनी, बिफोर मूविंग टू जर्मनी, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट विच इज एक्साइटिंग यू राइट नाउ अबाउट मूविंग टू जर्मनी? एक्साइटमेंट सर इस चीज की है अभी की, एक बिल्कुल नई जिंदगी है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। नो डाउट कि इंडिया में सब कुछ हमने मतलब यहाँ काफी मेहनत की, काफी पढ़ाई की, लेकिन अब ये है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी है हमें गॉड ने। और मुझे ये है कि मैं इसको अच्छे से करूँ, अच्छे से निभाऊं। और एक्साइटमेंट इस चीज की भी है कि आफ्टर 2.5 years मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, और उसके बाद फिर आगे का जो सफर है मेरा रिसर्च का है, बाकी सब जो है वो मैं एक अच्छी फर्स्ट क्लास कंट्री में पूरी करूंगा। You'll be completing the तो वो master. काफी चीजें encourage कर रहे हैं जी। And how the process with Indo-German education went completely, अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहो, स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग, एडमिशन एंड वीजा कंप्लीट, आपको कैसा लगा? जी जी। 18 सितंबर 2024 को हमारी बात हुई है। और उन्नीस 19 सितंबर 2024 को मेरा ग्रुप बन सकता है व्हाट्सएप पे, और उसमें सारे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं, मैं भी ऐड हो जाता हूँ। और उसके बाद से जो है मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मेरी 10th 12th एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एंड उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, APS एंड आइल्स एंड वो सारे, तो वो सारे सबमिट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है प्रोसेस अक्टूबर मंथ में, यूनिवर्सिटीज का और कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग का। अक्टूबर और मिड ऑफ नवंबर तक ये सब चलता है। और उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटीज पे एप्लीकेशन कर देते हैं। 15 दिसंबर तक हमारी एप्लीकेशन हो जाती है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और प्रॉपर टाइम के साथ हर एक चीज को माइन्यूटली बारीक बारीक तरीके से हमने ऑब्जर्व किया, और बेस्ट जो भी बेस्ट रहा वो चूज किया, यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेशन कर दी। एंड 15 दिसंबर को लास्ट एप्लीकेशन हो जाती है। आप ये लगा लें 20th जैन को मुझे ऑफर आ जाता है। एंड आफ्टर 20th जैन मैं इसके लिए वेट लिस्ट ही था पुराने BFS में। तो एकदम से इनका फिर प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो उसमें भी कोई मसला नहीं रहा, डॉक्यूमेंट सारे हो गए थे, ब्लॉक ये सब चीज़ें सारी हो गई थी ऑलरेडी। तो बस जैसे ऑनलाइन हुआ, और साथ के साथ फिर ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट डाल दिए गए, अपलोड कर दिए गए। थोड़े टाइम के बाद अपॉइंटमेंट हो जाती है, और अपॉइंटमेंट के 3 दिन के बाद वीजा आ जाता है। तो ये आप लगा लें कि कल मेरा वीजा है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स लगे, लेकिन सब्र के साथ और आप लोगों पे विश्वास के साथ तो सारी चीजें पूरी होगी अच्छे से। And a one word that can describe the entire process in Indo-German education from your behalf, just one word. आई वुड से वंडरबार, वंडरफुल, Wunderbar. वंडरबार। Okay, so you have started learning German also. यस 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 यस। आई हैव लर्नड A1 लेवल ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एंड A2 इंटरमीडिएट लेवल। अभी चल रहा है, हमारे यहाँ पे चल रहा है या खुद से कर जी रहे हो? जी। आपसे भी किया मैंने, और खुद भी सेल्फ स्टडी भी की मैंने। हम्म। बेहतर रहा। अभी तक मुझे अच्छे से कम्युनिकेशन मेरी अच्छी हो गई है। और ये है कि मैं जो भी नॉर्मल टॉक्स रहती हैं, कन्वर्सेशन होती हैं, वो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो आपने हमारे यहाँ पे भी ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हैं, राइट? जी 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 बिल्कुल। तो शुरुआत में मैंने शुरुआत में मैंने 4 महीने तकरीबन
मैंने जर्मन सीखी। आपने जो क्लासेस प्रोवाइड की थी एंड मटेरियल्स था, वो सारा मैंने प्रिंट आउट करा के रखा, एंड साथ साथ क्लासेस होती थी और साथ साथ मैं उनको गो थ्रू करता होता। तो और जर्मन उसका क्लासेस टाइमिंग का भी अच्छा था। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? रात को टाइम होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, रात को हम लोग बैचेस लेके आते हैं, तो वो जर्मन क्लासेस जी आपको हमारे यहाँ पे कैसी लगी? जी, वो बिल्कुल सही बैठा था। उसका रीज़न ये है कि जो क्लासेस थी वो आफ्टर द इवनिंग होती थी। तो मेरे लिए तो वो बेस्ट टाइम था, और कोई बर्डन भी नहीं था। 1 आवर की क्लास रहती थी जिसमें हम लोग अपने डाउट्स भी पूछते थे, और साथ साथ हम अपना जो भी होमवर्क मिलता था वो भी साथ साथ डिस्कस हो जाता था। तो विद इन कुछ महीनों में ही आप मतलब इतने को काबिल हो जाते हैं जर्मन बोलने के कि आपका सर्वाइवल मुश्किल नहीं होता। तो वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए। ठीक है, perfect. So, hoping a big start, a big journey in Germany. Wish you all the best. And थैंक यू जब सर। भी we will be in Germany, so Bauhaus Weimar का campus tour is on Mohammed Ajmal Khan. यस सर, श्योर श्योर श्योर, नो वरीज। Perfect. And rating क्या देना चाहोगे? Finally, 1 at the lowest and 10 at the highest. आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10। कोई इसमें कोई दो राय नहीं। Thank you so much. Means a lot, Mohammed sir. So big congratulations again, and especially tomorrow is Eid, so Eid Mubarak to you in advance. खैर मुबारक सर, थैंक यू सो मच। Done. So this is a gift, मतलब ईद का ही गिफ्ट आपको आ गया, ईद के एक दिन पहले यू रिसीव्ड एज अ जी जी, जर्मन स्टूडेंट वीजा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी यही यही मान रहा हूँ मैं भी कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा, सारी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स को जाते समय क्या कहना चाहोगे, हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, गेटिंग देयर एडमिशन इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन वीजा? आप उनको फाइनली क्या कहना चाहोगे आपके एंड से? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट्स है मेरे जैसा जो ये वीडियो देख रहा है हमारी, मैं उसको यही गाइड करना चाहूंगा कि आप लोग आंखें बंद करके किसी से प्रोसेस ना करें। उस इंसान से कराएं जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता है, जो वहाँ रह के आया है, और जिसका ग्राफ अच्छा है, जिसके सक्सेस वीजा रेशियोज अच्छे हैं, और जिसके पास स्टाफ हाईली क्वालिफाइड है और प्रोफेशनल है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंडो जर्मन से कांटेक्ट करें। बहुत अच्छी टीम है और बहुत तरीके से आपको गाइड करेगी। आपके माइंड में एक रोड मैप रहेगा, वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, और विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी एंजाइटी, आप आराम से गो विद द फ्लो एंड द प्रोसेस विल मूव स्मूथली।